Our dear Lord, we thank you for the privilege you have granted to come to your feet. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें सौभाग्य दिया कि हम आपके चरणों के करीब आ सके हैं। Cleanse us, open our eyes of understanding, and speak to us and take glory unto yourself, because we offer this prayer with thanksgiving in Jesus' name. प्रभु जी हमें शुद्ध और पवित्र कीजिए और हमारी समझ को खोलिए ताकि हम आपकी महिमा कर सकें। और इस प्रार्थना को उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांग लेते हैं। Amen. आमीन। Amen. Thank you, my dear brothers and sisters, for your kind prayers. जी भाई और बहनों, आप सबकी प्रार्थना के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। Please continue to pray for me so that I may need extra grace to serve Him faithfully. और आप सबकी प्रार्थना के द्वारा मुझको प्रभु विश्वास योग्यता के साथ सेवा करने के लिए और अनुग्रह दे। As we are studying the book of Acts, we need to remember that book of Acts is based on the main pivotal verse, Acts chapter 1 and verse 8. और प्रेतों का काम जो जो शिक्षा है, उसका एक मुख्य जो आधार बिंदु एक वचन जो है वो प्रेरितों के काम अध्याय 1 के 8 पर आधारित है। So we should never forget this particular important verse, a key verse for book of Acts. और ये प्रेरितों के काम के अध्ययन के लिए एक मुख्य बिंदु है, प्रेरितों के काम 1 का 8। I felt maybe I should read once again Acts chapter 1 and verse 8. You will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth. परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारी यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। So the book of Acts can be divided into three parts. प्रेरितों के काम को हमने अध्ययन के 3 भागों में बांटा था। Chapter 1 to chapter 7, the witnesses unto the Lord is covered by his disciples in Jerusalem and in Judea. और पहले भाग में 1 से 7 अध्याय तक हमने देखा कि चेलों ने और प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह की गवाही यरूशलेम और यहूदिया में दिया। The witness of the Lord is extended to Samaria in chapter 8. और ये प्रभु यीशु मसीह की गवाही सामरिया तक पहुंच गई, उसे हम प्रेरितों के काम अध्याय 8 में देखते हैं। And the witness of the Lord extended much more from chapter 9 to chapter 28, which goes even beyond the remote parts of the earth. और प्रेरितों के काम 9 से 28 तक हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह की गवाही पृथ्वी के विभिन्न भागों तक और छोर तक पहुंच गई। So we should never forget that Acts chapter 28 is not concluded, and you and I, all believers of all over the earth, is included after chapter 28. और जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेरितों का काम 28 में प्रेरितों के जो काम है वो खत्म नहीं हुआ है, परंतु वो आपके और मेरे द्वारा अभी भी जारी है और वो हो रहा है। So when the disciples were baptized in the Holy Spirit, that means after being born again, the disciples were under the full control of the Holy Spirit. Baptism of the Holy Spirit means under full control of the Holy Spirit. They were using very important statements saying that we are the witnesses to the resurrection of the Lord Jesus Christ. और प्रेरितों ने गवाही दी प्रभु यीशु मसीह की कि उन्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा कैसा मिला। और ये जो हम वचन हैं हम देखते हैं प्रेरितों के काम में विशेष वचनों में। और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा होने का यही अर्थ होता है कि हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चले जाते हैं। You should know the background story of this book of Acts. और आप जानते हैं कि इस प्रेरितों के काम की पृष्ठभूमि की कहानी क्या है। We have already discussed earlier many times. और इसे हमने पहले भी कई बार सुन चुके हैं। I will not be tired to repeat it again and again because that's very, very important. और इसे बार बार कहने से भी मैं नहीं थकता हूँ क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। Jewish people did not accept Jesus Christ as Messiah. और यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को एक मसीहा के रूप में स्वीकार नहीं किया। When Jesus was declaring about his deity, they thought that Jesus was blaspheming.
और प्रभु यीशु मसीह ने जब अपने देवत्व के बारे में प्रकट किया तो लोगों ने उन पर परमेश्वर की निंदा का ईश निंदा का आरोप लगा दिया। So, because they did not accept Jesus as Messiah and counted his claims uh, that he is God, and they want to stone him to death, but they could not. और प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने मसीहा के रूप में अस्वीकार कर दिया। और यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहने के कारण उन्होंने उन्हें पत्थरवाह करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। They have handed over him to the government of Roman government, and they saw to it that he will be crucified. और उन्होंने रोमी सरकार को उनके हाथ में सौंप दिया ताकि उनको क्रूस पर चढ़ाया जा सके। So in the first century and the second century, in the third century, the Christianity was counted as a cult, and it was not recognized as a religion. और प्रथम द्वितीय और तीसरी शताब्दी में हम देखते हैं कि ये मसीही लोग धोखेबाज माने जाते थे और इनको लोग आदर नहीं करते थे और इनका बहुत ही तिरस्कार करते थे। So that's what we also find in Book of Acts, chapter 8. और ये बातें हम प्रेरितों के काम अध्याय 8 में भी देखते हैं। We have already studied up to chapter 7 in our previous study. और पहले के क्लास में हमने 7 अध्याय पूरा पढ़ चुके हैं। So we need to study from chapter 8 onwards. Chapter 8 is divided into 4 parts. और प्रेरितों के काम अध्याय 8 को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। In our previous study, we have also seen that because of the persecution, disciples were scattered. हमने ये भी देखा था कि पिछले बार सताव के कारण प्रभु यीशु मसीह जो है, We find it in chapter 8, verses 1 to 3, और ये बात प्रेरितों के काम 8 का 1 से 3 में देखते हैं। and chapter 8, verses 4 to 13. We notice that Philip, the evangelist, goes to Samaria and preaches gospel to the Ethiopian. और प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 4 से 13 के बीच में हम देखते हैं कि फिलिप्पुस जो है वो सामरिया में गया और प्रभु यीशु मसीह की गवाही दिया। And chapter 8, verses 14 to 25, apostles heard that gospel reached Samaria, and they visited and they encouraged the believers at Samaria. और प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 14 से 25 के बीच में हम देखते हैं कि प्रेरितों ने सामरिया क्षेत्र में गए और वहां पे फैलने वाले सुसमाचार को देखकर बड़े आनंदित हुए और लोगों से मिले। And 26 to the end, we find that Ethiopian was converted. और 8 अध्याय के 26 लेके आखिरी में हमने देखते हैं कि सुसमाचार जो है वो एनोक तक पहुंच गया और जो इथियोपिया के लोग थे वो परिवर्तित हो गए। We need to remember verse 4 and verse 14. I found it that they are very, very important verses. और 4 वचन और 14 वचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जिसे हम याद रखना है। So let me read chapter 8, verses 1 to 3. Saul was in hearty agreement with putting him to death. And on that day, a great persecution began against the church in Jerusalem, and they were all scattered throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. Some devout men buried Stephen and made loud lamentation over him. But Saul began ravaging the church, entering house after house and dragging off men and women. He would put them in prison. प्रेरितों के काम 8 अध्याय 1 से लेकर 3 वचन। साउल उसके वध में सहमत था। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया और सामरिया देशों में तितिर बितिर हो गए। कुछ भक्तों ने स्तिफनुस को कब्र में रखा और उसके लिए बड़ा विलाप किया। साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। Many people think that persecution is a curse, और बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सताव जो है एक प्रकार का श्राप है। but Bible says that persecution is a blessing in disguise. ब्लेसिंग इन व्हाट अंकल? In disguise, disguise का मतलब क्या है? वो बाहर दिखता नहीं है, पर इसके पीछे रहता है. Is a something hidden. ओके। Blessing in disguise. ओके। और वास्तव में जो ये सताव है वो एक नहीं दिखने वाली आशीष है।
Please remember that God is sovereign. और ये बात हमेशा याद रखिए कि परमेश्वर सार्वभौमिक है, Without God's permission, nothing happens. और बिना परमेश्वर के इजाजत के कुछ भी नहीं होता है। Nothing in the sense nothing. और कुछ का मतलब कुछ भी नहीं। But we need to remember that there are two different categories of the will of God. और एक बात हमें याद रखना है कि परमेश्वर की दो प्रकार की इच्छा के भागों को हम देख सकते हैं। In fact, not just two, there are many more, but at least two basic and very important perspective of the will of God. सारे भाग हैं जिसे हम परमेश्वर की इच्छा को समझ सकते हैं, परंतु दो प्रकार के भागों में हम प्रभु परमेश्वर की इच्छा को जान सकते हैं। One is perfect will of God, and the second one is permissive will of God. और पहला है जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है, और दूसरा है जो परमेश्वर की अनुमति से प्राप्त इच्छा है। Let me repeat, because this is very, very important. Every believer, every Christian must know. ये बहुत आवश्यक है, इसलिए हमारे प्रत्येक विश्वासियों को ये बात मालूम होनी चाहिए। There are two categories when we explain about the will of God. One is perfect will of God, and the second one is permissive will of God. और दो प्रकार की इच्छाओं को हम परमेश्वर की इच्छाओं को दो भाग में बांट सकते हैं। पहला है उसकी सिद्ध इच्छा। Perfect will of God goes always in parallel to his character. और पहला जो सिद्ध इच्छा है वो परमेश्वर की चरित्र की समानता में हमेशा जाता है। That means God is holy, God is perfect, God is truthful, God is faithful, and God is gracious, God is compassionate, and anything God's characteristics goes in line, we call it a perfect will of God. और परमेश्वर की जो गुण है जिसे हम कहते हैं पवित्रता या सिद्धता या सत्य या विश्वास योग्यता या उसका अनुग्रह और उसकी दया, उसी की समानता में ही जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है उसे हम देख सकते हैं। You may ask me a question, brother, how do you know it? और आप पूछ सकते हैं कि भाई आपको ये बात कैसे मालूम है। 2 Timothy chapter 2 and verse 13. दूसरा तिमुथियुस की किताब उसका 2 अध्याय वचन 13। 2 Timothy chapter 2 and verse 13. If we, दूसरा अध्याय। yes, जैसा if we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself. दूसरा तिमुथियुस 2 अध्याय के 13 में लिखा है, यदि हम अविश्वासी भी हों तो भी वह विश्वास योग्य बना रहता है, क्योंकि वह आप अपना इनकार नहीं कर सकता। We are unfaithful, but God is never, never unfaithful. God always faithful. हम अविश्वास योग्य होते हैं, परंतु कभी भी परमेश्वर अविश्वास योग्य नहीं होते, वो हमेशा विश्वास योग्य रहते हैं। How do we understand the faithfulness of God? और हम परमेश्वर की विश्वास योग्यता को कैसे समझ सकते हैं। That means if God is holy, whatever God does, definitely holy, definitely not unholy. इसका मतलब है कि परमेश्वर अगर पवित्र है तो वो जो कुछ भी करेगा वो पवित्र होगा, वो कभी भी अपवित्र नहीं होगा। God is truthful, God is truth, then whatever he does, that's always truthful. God cannot lie. और अगर परमेश्वर का गुण सत्य है तो वो हमेशा जो करेगा वो सत्य होगा, और परमेश्वर कभी झूठ नहीं कहेगा। That's what it means. For he cannot deny himself means he cannot do anything against his own character. और परमेश्वर कभी अपने आप का इनकार नहीं कर सकता, इसका मतलब यही है कि परमेश्वर कभी भी अपने गुण के विपरीत काम नहीं करेगा। So when we say that perfect will of God, the perfect will of God is always in line with the scriptures. और परमेश्वर की जो सिद्ध इच्छा है वो हमेशा परमेश्वर के वचन के अनुरूप होगी। So Bible says God is holy. God expects every one of his children to be holy because that is the perfect will of God. और परमेश्वर पवित्र है और वो चाहता है कि उसके लोग पवित्र हों, यही परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। And then permissive will of God. और दूसरा है जो अनुमति से प्राप्त इच्छा होती है।
So, what does it mean by permissive will of God? और परमेश्वर की अनुमति से प्राप्त इच्छा को क्या बोल सकते हैं? God gave me freedom. परमेश्वर हमें स्वतंत्रता देते हैं। So, when God gives me freedom, don't ever think that God will involve by force and then he will कुछ दबाव से कुछ करता है. No, he will never do that. और ये कभी मत सोचिए परमेश्वर हमें कुछ बातें दबाव से वो डालना चाहते हैं। God, most probably in the Bible, what I understand is, most जहाँ probably God will not disturb our will. God only inspires us. God only pleads us. God only keeps options before us. He wants us to choose. When I sin, I do with my own will and conscience. I cannot blame God. और परमेश्वर जो है हम पर दबाव नहीं डालते हैं, जहां तक हो सके वो हमारी हमारी इच्छा पर हमें छोड़ते हैं, वो हमें प्रेरणा देते हैं, हमारे सामने विकल्प रखते हैं कि हम सही चीज का चुनाव कर सकें। अगर पाप को हम देखते हैं अपने जीवन में तो उसे चुने या ना चुने ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। So just because many things happens in the world, don't ever say that it is God is responsible for it. संसार में बहुत कुछ हो रहा है, इसका मतलब ये मत समझिएगा कि ये सभी बातों के जिम्मेदार परमेश्वर है। Bible also says that God is not the author of evil. और ये भी याद रखिएगा वचन में लिखा है कि परमेश्वर बुराई की रचना नहीं करता है। God is not a man to lie. परमेश्वर वो मनुष्य नहीं है जो झूठ बोले। So God's perfect will is different. God's permissive will is different. इसलिए परमेश्वर की सिद्ध इच्छा और अनुमति से प्राप्त इच्छा अलग अलग होती है। You may ask a question why God permits. और एक सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि परमेश्वर अनुमति क्यों देते हैं? God is a God of free will being. और परमेश्वर जो है वो परमेश्वर स्वतंत्र इच्छा का परमेश्वर है। And what God created man in his own image, a component of his image is a freedom given to human beings. और परमेश्वर जब मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाता है तो चूंकि वो खुद स्वतंत्र है इसलिए वो अपने मनुष्यों को भी स्वतंत्र इच्छा देता है। So God, his character is defined very well in the scriptures in the Bible. he और gave परमेश्वर he की gave his commands by the way of commission, by the way of omission. और जो परमेश्वर के गुण और चरित्र हैं वो बाइबल में हम देख सकते हैं। उसको हम बाइबल में परमेश्वर की आज्ञा या निषेध आज्ञा के रूप में देख सकते हैं। So Bible says do this and do not do this. इसलिए परमेश्वर के वचन में हम देखते हैं कि आप ये करें और आप ये ना करें। And we need to willfully do whether we do or do not. और इसलिए हमारे ऊपर परमेश्वर इच्छा छोड़ता है कि हम अपनी इच्छा से किसी चीज को काम को करें या ना करें। There's a reason why theologians call it sins of commission and sins of omission. सिंस ऑफ व्हाट दैट मीन अंकल? Sins of commission, sins of omission. Sins of commission means God says do not lie. It's a negative sense. And God also says that be truthful. So these two things, we should be truthful and we should not lie. So God wants us to do something, we should do it. God does not want us to do something, we should not do it. ओके, तो परमेश्वर जो कहते हैं कि कुछ कार्यों को हम ना करें उस हिसाब से है, या कुछ कार्यों को हम करें उस हिसाब से परमेश्वर हमें कहते हैं, जिसे हम समझ सकते हैं कि परमेश्वर कहते हैं झूठ मत बोलो। इसका मतलब है कि वो दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि आप हमेशा सच बोलो। So if I tell lie, God permits it to happen, but I will pay for it. इसका मतलब है कि अगर झूठ हम बोलते हैं तो परमेश्वर उसकी अनुमति तो दे देंगे लेकिन उस झूठ का वो हम पे न्याय करेंगे। So God has given responsibility to take care of the nature. God has given responsibility to take care of the society. God has given responsibility to take care of the family. और परमेश्वर ने हमें हमारी चरित्र की, हमारी समाज की और हमारी परिवार की जिम्मेदारी हमें दे दी है। You are a father, you are supposed to take care of your wife and children. अगर आप पिता हैं तो आपको अपनी पत्नी और आपके बच्चों की जिम्मेदारी आपको देखनी पड़ेगी। You are supposed to bring bread to your wife and to your children. और आपको अपने बच्चों को और अपनी पत्नी को रोटी देना पड़ेगा। You don't give bread to your wife and your children
अगर आप अपने पत्नी और बच्चों को रोटी नहीं देते हैं तो, and you keep on blaming God, saying that you are sovereign God, you can bring bread to my wife and children, you are not doing it, you can't throw blame like that. और आप ऐसा कहें कि परमेश्वर तो सार्वभौमिक है, उसे तो सबका ख्याल रखना चाहिए, वो मेरे पत्नी और बच्चों को रोटी क्यों नहीं So है? God has given you responsibility to take care of your wife and children. इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें आपके पत्नी और बच्चों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। You are supposed to think all what you can or what you cannot before marriage. इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि विवाह के पहले आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस बात की जिम्मेदारी आप रखें। When you are not able to take care of yourself, why marry? और अगर आप अपने ही ख्याल नहीं रख सकते हैं तो आप एक विवाह क्यों करते हैं? You marry and you beget children and you blame God. That's not correct. और आप विवाह करें और बच्चे उत्पन्न करें और परमेश्वर पर दोष लगाएं, ये उचित नहीं है। God has given you primary responsibility to take care of your wife and children. You have to do it. Don't blame God. और आपको परमेश्वर ने प्राथमिक जिम्मेदारी दे रखी है कि आप अपने पत्नी और बच्चों की जिम्मेदारी उठाएं, इसलिए आप परमेश्वर पे दोष नहीं लगा सकते। In the same way, God has given responsibility to the civil leaders of our society. और इसीलिए ने इसी प्रकार हमारे जो समाज के जो जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनके ऊपर भी अपनी जब जिम्मेदारी दे रखी है। Maybe something like police department, maybe something like the law of court, maybe something like the state government and central government and defense mechanism. और इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी सामाजिक जिम्मेदारी परमेश्वर ने पुलिस लोगों को दे रखी है, जज और न्यायालय को दे रखी है, राज्य और राष्ट्रों को भी दे रखी है। They are supposed to keep the state government and the central government and the local city and a local town safe and sound. और ये परमेश्वर ने इसलिए ऐसा किया है ताकि जितने भी राज्य सरकार है, केंद्रीय सरकार, स्थानीय सरकार जो है सुरक्षित और सही तरीके से चले। Why police defense personnel are there in the society? और पुलिस जो है सुरक्षा के लिए समाज में क्यों रहते हैं? Because thieves are there. क्योंकि वहां पे चोर पाए जाते हैं। If thieves are not there, अगर चोर वहां पे ना रहें the necessity of police department is not required. तो पुलिस की कोई जरूरत नहीं दिखती है। So if there is any thief does some destruction, why do you blame God? और अगर यहाँ पे चोर है और उसके द्वारा कुछ नुकसान हो रहा है तो आप परमेश्वर को दोष क्यों दे रहे हैं? Because God given that responsibility to the state government and central government and to the other defense or security departments concerned. और परमेश्वर ने जो विभाग बनाए हुए हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उनकी जिम्मेदारी है ताकि वो उनकी सुरक्षा के काम को देखें। There are many people who blame God when there is some kind of rape. और आज बहुत सारी बलात्कार होते हैं, उसमें भी बहुत सारे लोग जो हैं वो आरोप लगाते I हैं। heard many people saying that where is God when such innocent girl is being raped? और कई बार ऐसा हम देखते हैं, सुनते हैं कि जब किसी कमजोर स्त्री का बलात्कार होता है तो लोग इस बात का आरोप लगाते हैं कि भगवान परमेश्वर कहाँ है। Parents are supposed to take responsibility of the little girl, और परिवार को चाहिए, माता पिता को चाहिए कि वो अपनी बच्ची की सुरक्षा करें। and the police and other defense system of the town or a village or the city are supposed to see that the people should live in peace. And when something wrong, why do you blame God? God has already given this responsibility. We need to take care of it. और हम देखते हैं कि किसी भी गांव में, शहर में, वहाँ पे सुरक्षा के तंत्र हैं, पुलिस के लिए शांति का वातावरण बनाएं, तो ऐसी घटना होने से हम परमेश्वर पे क्यों दोष लगाते हैं? क्यों? Then you may ask a question: why there are many floods? Why there are many earthquakes? Why there are many certain natural calamities happening? Where is God when such things happen? और हम आप मेरे से भी सवाल पूछ सकते हैं कि बाढ़ आते हैं संसार में, भूकंप आता है, बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती है, ये सब क्यों होता है? There are two reasons. इसके दो कारण हैं। Reason number one is it is because man rebelled against God. God cursed the ecology system, and so it happens. और पहला कारण ये है कि मनुष्य परमेश्वर के विरोध में बलवा करता है और उसका परमेश्वर जो है न्याय करते हैं।
Every time we find some kind of natural calamity, immediately we need to understand that I have rebelled against God. It is because my rebelliousness against God, this has happened, and we need to repent and beg God that such things should not happen thereafter. और हमको ये समझ में आना चाहिए जब भी प्राकृतिक आपदाएं आती है, बाढ़ भूकंप ये सब समस्या आती है, तो ये बात हम समझना चाहिए कि जरूर हमसे कुछ पाप और गलतियां होती है, जिसके कारण हमारे परमेश्वर के विरोध में बलवा करने के कारण ये सब हुआ है। इसलिए उस समय हमें तुरंत मन फिराव करना चाहिए और परमेश्वर से इन सब समस्याओं को दूर होने के लिए मांगना चाहिए। And reason number two, और दूसरा कारण है, every man on the face of the earth is custodian to take care of the ecology system. प्लीज एक्सप्लेन सिंपल अंकल। In Genesis chapter 1, God commanded Adam and Eve to rule the creation, to till the ground, to take care of the fields, to take care of the all creation so that ecological balance will take place. और परमेश्वर ने जब मनुष्य को उत्पत्ति की किताब 1 अध्याय में बनाया, तो आदम और हवा को बना के परमेश्वर ने जिम्मेदारी दी कि वो सृष्टि की रक्षा करें और पृथ्वी और धरती में जो कुछ है उसकी रक्षा करें, ताकि वहां पर एक जो इकोसिस्टम है, जो उसका जो है वो सामान्यतः बैलेंस में बना रहे। We abuse the nature, and naturally, the nature returns according to how we treated the nature. और हम अगर प्रकृति को नुकसान पहुंचाते हैं, तो उसके जवाब में प्रकृति भी हमें इसी प्रकार के उत्तर देती है। We know that there should not be dust pollution. और हम जानते हैं कि हाँ, जो यहाँ जो धूल होता है, जो प्रदूषण है, ये नहीं होना चाहिए। We know that there should not be sound pollution. हमें मालूम है कि जो ध्वनि का प्रदूषण नहीं होना चाहिए। We know that there should not be any air pollution. हमें ये भी मालूम है कि वायु प्रदूषण नहीं होना चाहिए। But we deliberately pollute the air, pollute water, and pollute the whole system we live around, and you blame God. It's not fair. और आप देखेंगे कि हम हवा को प्रदूषित कर रहे हैं, जल को प्रदूषित कर रहे हैं और पूरे सिस्टम को प्रदूषित कर रहे हैं, और ये सारे प्रदूषण करके भी हम परमेश्वर का इसके ऊपर आरोप लगाते हैं। ये सब अनुचित है। God has given us wisdom and God has given us responsibility. God wants us to take care of it. When we don't take care of it, it will pay accordingly. And so God permits it. That's what I'm trying to say. और प्रियो, हमको परमेश्वर ने बुद्धि दिया है, जिम्मेदारी दी है कि हम इसकी केयर करें, सुरक्षा करें। अगर वो हम नहीं करते हैं तो इसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। इसी को परमेश्वर की अनुमति प्राप्त इच्छा कहते हैं। So there are two categories of the will of God, perfect will of God and permissive will of God. तो इसलिए परमेश्वर की इच्छा को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक है उसकी सिद्ध इच्छा और दूसरी है उसकी अनुमति प्राप्त इच्छा। And the thirdly, और तीसरी बात है, God, in His grace and wisdom, although He permits something to happen, but those who love the Lord, those who are called according to His purposes, even that particular loss or damage or hurts or persecution turns for His glory. और प्रियो तीसरी बात यह है कि परमेश्वर से जब हम अनुग्रह और बुद्धि प्राप्त करते हैं, तो परमेश्वर जो अनुमति देता है कि हमारे जीवन में प्रेम रहे, हमारे जीवन में हम परमेश्वर की योजना से बुलाए गए व्यक्ति हैं। तो इसके बाद अगर ऐसा है तो जो नुकसान होता है, चाहे सताव हो, कुछ हो, वो हमारे जीवन की महिमा का कारण बन जाता है। Please turn with me to Romans chapter 8 and verse 28. रोमियो की किताब उसका 8 अध्याय उसका वचन 28 हम पढ़ सकते हैं। I request every one of us to please by heart this verse because this verse carries tons and tons of truths of God. और इस वचन को अच्छे से याद रखें, क्योंकि बहुत सारी सच्चाइयां इस वचन में छुपी हुई है। We know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to his purpose. और यहाँ लिखा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं।
Do you know? यहाँ लिखा है क्या आप जानते हैं? Here, Apostle Paul says, we know. और यहाँ पौलुस कह रहा है कि हम जानते हैं। If you do not know, you better know now. और अगर आप नहीं जानते हैं तो अच्छा है कि आप अब अच्छे से जान जाएं। What should you know? और आपको क्या जानना है? We know that God causes all things to work together for good. और यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ लिखा है कि सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है। Let me repeat. We know that God causes all things to work together for our good. और यहाँ लिखा है कि परमेश्वर सब बातों को मिलाकर भलाई को उत्पन्न कर देते हैं। For whom? किसके लिए? Not for all. सबके लिए नहीं। Here he gives very clear understanding of this text. To those who love God. और यहाँ लिखा है उसके लिए जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं। To those who love God. जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं। Only with those people concerned, Bible says, God causes all things to work together for good. और उन्हीं के लिए लिखा है कि सारी बातें मिलकर परमेश्वर के सामने भलाई को उत्पन्न करती है। Yeah, to those who love God, to them, God causes all things to work together for good. और जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। How much good is that good? और That's an यहाँ intellectual question. अब हमारे लिए एक सवाल पैदा हो सकता है कि परमेश्वर भलाई उत्पन्न कर रहा है तो वो कितनी भलाई उत्पन्न कर रहा है? To those who are called according to His purpose. और ये जो भलाई है वो किसके लिए होगी? वही जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Who will love the Lord? और परमेश्वर को कौन प्रेम करेगा? Those who are called according to His purpose. जो लोग परमेश्वर की इच्छा से बुलाए हुए हैं वे लोग परमेश्वर को प्रेम करेंगे। Those who love the Lord, they will cooperate with God so that all that are happening in their life, God will see that it will work for their good. और अगर हम जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बुलाए हुए लोग हैं, हम जरूर परमेश्वर के साथ एक सामंजस्य निभाएंगे और उनका सहयोग करेंगे, और इसके कारण हमारे जीवन में सब कुछ भलाई को परमेश्वर लेके आएगा। Hope you got the point. विश्वास करता हूं आप उसे समझे होंगे। But this is such an important truth. I have to hammer to the point till you understand or till it sinks in your mind. और ये बहुत महत्वपूर्ण सच्चाई है, तो इसे मैं बहुत ही जोर लगा के आपको बताना चाहता हूं जब तक आप ना समझें। The will of God is, we have discussed in three ways. तो हमने परमेश्वर की इच्छा को तीन तरीके से अध्ययन समझा। Number one is perfect will of God. पहला जो परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है। So God never contradicts himself means God's perfect will always is according to his character. Whatever और is not according to his character is not the perfect will of God. और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा का मतलब यही है कि परमेश्वर अपने गुण के अनुसार सब कुछ करेगा, वो अपने चरित्र और गुण के विपरीत कुछ भी नहीं करेगा, उसे ही हम परमेश्वर की सिद्ध इच्छा कहते हैं। Sometimes many things happen which are contradictory to the very character of God. और हम बहुत बार देखते हैं ऐसा कुछ होता है जो परमेश्वर की गुण और चरित्र के विपरीत होते हुए हमें दिखता है। Why God allows such things to happen? और ऐसा परमेश्वर होने के लिए अनुमति क्यों देते हैं? Because God given us the free will to choose. When we sin against God, when we rebel against God, God may not every time interfere and stop us doing sin and stop us doing this and that, but God allows us so that we may pay for it. और जो परमेश्वर की जो दूसरी इच्छा है जिसे हम अनुमति से प्राप्त इच्छा कहते हैं, उसमें होता यह है कि जब कोई मनुष्य पाप करता है या परमेश्वर से बलवा करता है, और वो ऐसा क्यों करता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसे स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। वो परमेश्वर उसे रोकता तो नहीं है, परंतु उससे अनुमति से प्राप्त वो उसने वो काम किया है तो वो उसकी कीमत चुकाता है। God clearly commands us not to commit sin. परमेश्वर ने स्पष्ट आज्ञा दिया है कि पाप मत करो।
It is not the will of God that we should commit sin. और ये परमेश्वर की इच्छा नहीं है कि हम पाप करें। When we sin, और जब हम पाप करते हैं, we are responsible for it. हम इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। God will not stop us because we are not robots. God has given us freedom. We have to freely do. When we sin against it, don't blame God, blame ourselves. और प्रियो, परमेश्वर हमें कई बार इस काम को करने से क्यों नहीं रोकते? क्योंकि हम कोई मशीन या रोबोट नहीं हैं, परंतु हम मनुष्य हैं जिसे परमेश्वर ने स्वतंत्र इच्छा दे रखी है। तो इसलिए हम जब कोई पाप करते हैं तो उसका जो परिणाम है वो उसकी कीमत हमें चुकानी पड़ती है। God is a God of justice. परमेश्वर जो है न्याय का परमेश्वर है। When we sin against God, God will punish us. और जब हम परमेश्वर के विरोध में पाप करते हैं तो हमें दंड मिलता है। When we God punishes, that means we are paying for our own sins. और परमेश्वर हमें दंड दे रहे हैं, इसका मतलब है कि ये हमारे खुद के पापों की कीमत है। You may ask a question, Jesus died for our sins, why we need to pay for it? और यह बात हम बोल सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, तो हम क्यों कीमत चुकाएं? When we first accepted Jesus Christ as a personal savior, when we repented for our sin, when we begged for God to cleanse us with his precious blood, all our past sins, whatever it may be, that to that extent, every sin is cleansed and forgiven and never remembered again. जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तब सबसे शुरुआत में ये होता है प्रियो कि हमारे मन फिराने के कारण प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमारे पापों की क्षमा हो जाती है और हम शुद्ध हो जाते हैं। But after being born again, whatever sin we do willfully, knowingly, we will pay for it. परंतु नए जन्म को प्राप्त करने के बाद अगर हम किसी पाप को जानबूझ के और उसे जानबूझ के हम करते हैं समझते हुए, तो उसके लिए हमें कीमत चुकानी पड़ती है। You may ask a question, God will forgive us, no? आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि परमेश्वर ने तो हमें क्षमा कर दिया है। Yes, when you repent for your sin, God will forgive, but you will pay for the sin. और इसका मतलब है कि आपने मन फिराया है तो परमेश्वर ने आपको क्षमा कर दिया है, लेकिन उसकी कीमत आपको देनी पड़ेगी। That is the reason every believer should be very careful about sin. We should never play with sin. When our conscience says that this is sin, we should run away. We should avoid. We should take a firm stand that we should never do it. और हम जानते हैं विश्वासी होने के नाते कि ये पाप है, गलत है, तो हमें क्या करना है? हम जानते हैं कि ये पाप है तो हमें वहां से भाग जाना है और उसके विरोध में हमें खड़े हो जाना है। Whether we sin consciously or unconsciously, sin is sin. We will चाहे pay for हम it. और चाहे हम पाप करते हैं, वो हमारी चेतना में रहे या ना रहे, पाप पाप होता है, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। We are supposed to know what to do and what not to do. क्योंकि हमें मालूम है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। You can't be careless. आप एक गैर जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हो सकते। You are supposed to read the Word of God, the Bible, and know what you should do and what you should not do. और आपको बाइबल पढ़ना चाहिए ताकि आप सीखें कि आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। God speaks to us. God gives us the value system. God gives us the standards. What we should be doing, what we should not be doing. और परमेश्वर हमसे बात करता है, वो हमें मूल्य बताता है, वो हमारे सामने मानक रखता है कि क्या हम करें और क्या ना करें। When God's will contradicts the will of the law of the land, अगर परमेश्वर की जो इच्छा है वो इस संसार के जो परिस्थिति है उसकी इच्छा से विरोध में हो, then the question is, you may ask, what should I do? तब हम एक सवाल पूछ सकते हैं कि तब हम क्या करें। Bible says, lie not. परमेश्वर ने कहा झूठ मत बोलो। But the system says in the society, as you work, maybe in different corporate sectors or some kind of, employment you do, but there you're supposed to lie, you're supposed to cheat, you're supposed to, give wrong figures, you're supposed to sign a wrong statement. And if you say that no, I'm a Christian, I'm a believer, I'm not supposed to lie, I'm supposed to be a person of integrity, I will not do this, I will not do that, you'll have to face the music. और चूंकि प्रियो आप देखेंगे कि आप जानते हैं झूठ मत बोलो, परंतु देखते हैं संसार में ऐसा है, सिस्टम में, सोसाइटी में सब कुछ लोग, कई लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं
और गलत बिल बनाते हैं, गलत तरीके से हस्ताक्षर करते हैं, ये सब करते हैं। और कई बार हम ये सब ना करें तो हमें लगता है कि संसार में सब चल रहा है तो हम क्यों ना करें, परंतु परमेश्वर इस सब को देखता है और उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। When the will of God contradicts to the will of the law of land, you need to take stand for the truth, obey the will of God. और जब संसार की इच्छा और परमेश्वर की इच्छा अलग अलग हो तो हमें जरूर सत्य के साथ खड़े होना चाहिए और परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना चाहिए। Then you may ask a question, because I disobey the law of the land, they will definitely punish me. और आप मेरे से एक सवाल पूछ सकते हैं कि अगर संसार के जो लोगों की इच्छा चल रही है उसके अनुसार से मैं ना चलूँ इस संसार की इच्छा से, तो इसके लिए मुझे दुख उठाना पड़ सकता है, सजा हो सकती है, उसके लिए मैं क्या करूं? Definitely you'll have to face the punishment because you have disobeyed the law of the land, and law of the land will definitely punish you. और इस संसार की जो जो धरती का नियम है उसके अनुसार अगर कोई सजा देना चाहता है तो कोई बात नहीं, हमें उसकी उसकी उस सजा को भुगतना चाहिए। Then then the question is, okay, when I obey the will of God, will God take care of me or not? और ठीक है, एक बात हमें ध्यान रखना है कि जब मैंने परमेश्वर की इच्छा को पालन किया है तो क्या परमेश्वर मेरा ध्यान रखेंगे कि नहीं? Sometimes God may save us, हो सकता है परमेश्वर किसी समय में हमारी रक्षा करें, sometimes God may not save us. और हो सकता है किसी समय परमेश्वर ना करें। We will see when we carefully study the history of the people of God, right in our own country or elsewhere all over the world. और अगर हम इतिहास को देखें, हमारे देश का हो या संसार का, तो हम क्या देखते हैं God sometimes may save, sometimes may not save. कि परमेश्वर ने कभी किसी किसी को बचाया है और कभी नहीं भी बचाया है। Who should decide who should born at to which place to whose parents? और ये कौन निर्धारित करता है कि कौन सा मनुष्य किस परिवार में कहाँ जन्म लेगा? So the date of birth, the parents, the place, and all these things, who will decide? तो कौन सी तारीख में कोई जन्म लेगा, कौन से परिवार में जन्म लेगा, कौन सी जगह पे कोई जन्म लेगा, इसका निर्धारण कौन करेगा? Who should decide when a person should die, how a person should die? और कौन भी मनुष्य ये निर्णय लेगा कि कौन मरेगा और कैसे मरेगा? It's God, because God is a creator. और ये परमेश्वर ही है क्योंकि वो सृष्टि करता है। So the birth and the death are in the hands of God. इसीलिए जन्म और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। Nobody will give suggestion to God. कोई परमेश्वर को कोई सलाह नहीं दे सकता। God will not take anybody's suggestion. God is God, and God is और on the throne. God is sovereign God. God decides according to his plans and his purposes. और परमेश्वर को कोई सलाह नहीं दे सकता, परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, वो सिंहासन पे विराजमान है और परमेश्वर अपनी योजना पे चलता है। So when the will of God contradicts the will of the law of the land, we have to obey either the will of God or the will of the law of the land. और जब वह परमेश्वर की इच्छा कुछ और है और संसार के नियमों की इच्छा कुछ और है, तो हम विचार कर सकते हैं कि हम किसकी इच्छा पर जाएं और उसके लिए हम निर्णय ले सकते हैं। So what we have seen in Romans 8:28, और हमने रोमियो 8:28 में क्या पढ़ा? God causes all things to work together for good. और यह हमने पढ़ा कि परमेश्वर उन सारी बातों को मिलाकर भलाई को उत्पन्न करेगा। To whom? किसके लिए? Those who love the Lord. उनके लिए जो परमेश्वर को प्रेम करते हैं। Who loves the Lord? और परमेश्वर को कौन प्रेम करते हैं? Those who are called according to his purposes. जो लोग उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। What will happen when they love the Lord? और वे जब परमेश्वर को प्रेम करेंगे तो क्या होगा? God causes all things to work together for good so that his purposes are accomplished. और परमेश्वर सारी बातों को मिलाकर भलाई उत्पन्न करेगा ताकि उसकी योजनाएं पूरी हो। I think you understand the whole explanation what I have been trying to convince you. मैं समझ सकता हूँ कि जो कुछ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ आप उस बिंदु को समझे होंगे। God's perfect will, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा, God's permissive will. परमेश्वर की अनुमति से प्राप्त इच्छा। When God permits
something may happen that may cause us pain, that may cause us suffering, that may cause us persecution. और जब अनुमति से प्राप्त परमेश्वर की इच्छा की हम बात करते हैं, तब हमारे जीवन में दर्द, पीड़ा, सताव, ये सब बातें आती हैं। There are again two categories. और यहाँ पे भी हम इसे दो भाग में बांट सकते हैं। When I sin, then God will punish me because I pay for it. और मैं जब पाप करता हूँ, तो परमेश्वर मुझे इसके बदले में दंड देते हैं, क्योंकि वो उसकी कीमत है। Because I have transgressed the law of the Lord. क्योंकि मैं परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया है। Suppose I don't sin at all. और मान लीजिए कि मैंने कोई पाप नहीं किया है। It is somebody's mistake. मान लीजिए कुछ गलती से I lost your statements, brother. I couldn't hear you. Please repeat. आ, मान लीजिए कि Yeah. हमने पाप, यस Ah. अंकल। Yeah. When see, I should be punished only when I sin, when I transgress the law of God. और मैंने पाप जब किया है, मैंने जब परमेश्वर को आज्ञा को उल्लंघन किया, तभी मैं इस बात को समझ सकता हूँ कि मुझे दंड मिल सकता है। When I don't transgress the law of the Lord, I totally obey what God said. Sometimes I still am punished. और कई बार हमने परमेश्वर की आज्ञा का पूर्ण पालन किया है, हमने कोई गलती नहीं की है, फिर भी हमें कई बार सजा का सामना करना पड़ता है। Maybe it is because the law of the land, क्योंकि इस दुनिया के संसार का कुछ ऐसा नियम हो सकता है। maybe because of some rowdy, some evil fellow, some bad fellow, some bad things happen to me. और कुछ लोगों के कारण, कुछ उदंड लोगों के कारण, या कुछ गलत मित्रों के कारण ये सब परिस्थितियां मेरे जीवन में आ सकती है। Then how can we explain this situation? तो हम इस परिस्थिति को कैसे हम समझेंगे? I'm clear because I'm not at fault. I'm righteous before God. I'm not guilty before God, but still I'm punished. Still I'm going through pain and suffering. और यहाँ मैं सही हूँ, मैं धर्मी हूँ, और मैंने परमेश्वर की दृष्टि में कुछ भी गलत नहीं किया है, फिर भी मुझे दर्द और तकलीफ सहना पड़ रहा है। Let me go one step further. तो हमको थोड़ा एक बात आगे बढ़ के समझेंगे। When I obey God, when I sum total of my mind and heart and will, I serve God, I obey God, in the process of glorifying God, even then sometimes I'm punished by the people around me, by the people of the society, maybe by law of the land, but whatever may be the means. Then how do we explain the situation? अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, और मेरे मन और हृदय की सच्चाई से मैं सेवा भी कर रहा हूँ, उसकी आज्ञा का पालन भी कर रहा हूँ, और उसकी महिमा के लिए जी भी रहा हूँ, फिर भी कई बार लोगों के कारण हमारे जीवन में सजा और दंड आता है, तो इस परिस्थिति को हम कैसे समझेंगे? Then Romans 8:28 is applied. तब हम रोमियो की किताब 8 अध्याय उसके 28 वचन को समझेंगे। Even in that situation, I must love the Lord ऐसी परिस्थिति हो तो भी मुझे परमेश्वर को प्रेम करना है, because I am called according to his purposes. क्योंकि मैं परमेश्वर की योजना के अनुसार बुलाया गया व्यक्ति हूँ। Because I believe that God is sovereign. क्योंकि मैंने विश्वास किया है कि परमेश्वर सार्वभौमिक है। Because I know that nothing happens without his permission or without his notice. क्योंकि मैं जानता हूं कि परमेश्वर की इच्छा के बगैर और उसकी अनुमति के बगैर कुछ भी नहीं होता है। He permitted me to suffer. He permitted me to go lost. He permitted me to face insults. He permitted me to go through all that, the persecution and the things. और परमेश्वर ही है जिन्होंने मेरे जीवन में अनुमति दी है कि हानि हो, या मैं कुछ अपमान का सामना करूं, या मेरे जीवन में कोई सताव हो। This is all when I'm wholeheartedly serving the Lord, wholeheartedly obeying the Lord, wholeheartedly willing to give glory God, to glorify God. और मैंने अगर सच्चे हृदय से, पूर्ण हृदय से परमेश्वर की सेवा की है, आज्ञा भी मानी है, और उसके उसके बाद में मैंने अपने परमेश्वर को महिमा भी दी है, Then I need to love the Lord. और तब भी मेरे जीवन में अगर ऐसा कुछ परिस्थिति हो रहा है, तब भी मुझे परमेश्वर को प्रेम करना है। I'm supposed to love God in all situations of my life. क्योंकि परमेश्वर को हमें अपने जीवन की सभी परिस्थितियों में प्रेम करना है। In all situations of my life, I must love God. और मुझे अपने जीवन की सारी परिस्थिति में परमेश्वर से प्रेम करना है। What does it mean to love इसका God? मतलब क्या है? परमेश्वर को प्रेम करने का मतलब क्या है? To obey God.
परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। Very simple, to obey. To love God is to obey God. परमेश्वर की प्रेम करना मतलब उसकी आज्ञा का पालन करना। Please turn with me to 1 John chapter 5. पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5वां अध्याय में आप जा सकते हैं। We need to understand these basic and important truths of the scriptures. हमें परमेश्वर की आधार सच्चाइयों को मालूम या जानकारी होना चाहिए। Chapter 5 and verse 3. पहला यूहन्ना की किताब 5 अध्याय वचन 3। This is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. Who, whatever is born of God, overcomes the world. Uh, and then better we read, yeah, verse 3. This is the love of God, that we keep his commandments. और वचन 3 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। To love God is to love the scripture. और परमेश्वर से प्रेम करना मतलब उसके वचन से प्रेम करना। To obey God is to obey the scriptures. और परमेश्वर की आज्ञा को मानना मतलब परमेश्वर के वचन को मानना। Then God will cause us all things to work together for good, so that I may fulfill the purposes of God. तब परमेश्वर हमारे लिए सारी बातों को मिलाकर भलाई उत्पन्न करेंगे ताकि हम परमेश्वर की योजना पे चल सकें। If you understand all this explanation, then you will understand chapter 8 onwards. और जब आप इस वचन को समझेंगे तब 8 अध्याय के आगे वचनों को आप समझ पाएंगे। For that matter, you will understand the whole book of Acts. तब आप प्रेरितों के काम की पूरी पुस्तक को समझ पाएंगे। We have already seen in chapter 4 that the Sadducees and Pharisees and the people of the synagogue, officers of the synagogue, called the disciples and warned them and beaten them and abused them, saying that do not preach Christ. और हमने देखा था कि कैसे चौथे अध्याय में सदुकी, फरीसी और जितने न्यायालय के लोग थे वो आए और चेलों को उन्होंने चेतावनी दी कि यीशु मसीह के नाम के प्रचार नहीं करना। They said, to whom should we obey? Should we obey God or should we obey man? तब उन्होंने एक जवाब दिया कि हम किसकी आज्ञा का पालन करें, क्या मनुष्य का या फिर परमेश्वर का। They said, no, we will obey God. तब उन्होंने कहा नहीं, हम तो परमेश्वर की आज्ञा को ही पालन करेंगे, Does not matter whatever happens. चाहे कुछ भी हो। Please turn with me once again to Acts chapter 5 and verse 41. और प्रेरितों के काम अध्याय 5 उसका 41 वचन। Please turn with me to Acts chapter 5 and verse 41. So they went on their way from the presence of the council, rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for his sake, for his name. और यहाँ लिखा है प्रेरितों के काम 5 के 41 में, वे इस बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। Please turn with me also to 1 Peter chapter 4. वर्स अंकल। 1 Peter chapter 4. यस अंकल, वर्स विच वर्स? Verse 12 onwards. Beloved, do not be surprised at the fiery ordeal among you, which comes upon you for your testing as though some strange thing were happening to you, but to the degree that you share the sufferings of Christ, keep on rejoicing, so that also at the revelation of his glory you may rejoice with exultation. If you are reviled for the name of Christ, you are blessed, because the Spirit of glory and of God rests upon you. Make sure that none of you suffers as a murderer, a thief, or evildoer, or blessum meddler. But if anyone suffers as a Christian, he is not to be ashamed, but to glorify God in his name. Verses 12 to 16, please. और पहला पत्रस 4 अध्याय उसका 12 से लेकर 16 वचन। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो,
आनंद करो जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। फिर यदि मसीह के नाम के लिए तुम्हारी निंदा की जाती है तो तुम धन्य हो, क्योंकि महिमा का आत्मा जो परमेश्वर का आत्मा है तुम पर छाया करता है। तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या पराये काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करें। Apostle Peter is saying, just because you are a Christian, you will suffer. और यहाँ पतरस बता रहा है कि आप एक मसीह होते हैं तो आपको दुख उठाना पड़ता है। Because John's Gospel, chapter 15, verses 18 onwards. Let me read it for you. John's Gospel, chapter 15, verses 18 onwards. और ऐसा क्यों होता है प्रियो, इसे हम जानने के लिए यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 18 से आगे पढ़ सकते हैं। If the world hates you, you know that it has hated me before it hated you. If you were of the world would love its own. But because you are not of the world, but I chose you out of the world. Because of this, the world hates you. Remember the word that I say to you, a slave is not greater than his master. If they persecute me, they will also persecute you. If they kept my word, they will keep your words also. और यहाँ 15 अध्याय उसके 18 से लेकर हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ हम देखेंगे 20 वचन तक। यदि संसार तुमसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसलिए संसार तुमसे बैर रखता है। जो बात मैंने तुमसे कही थी, दास अपने स्वामी से बड़ा नहीं होता, उसको याद रखो। यदि उन्होंने मुझे सताया तो तुम्हें भी सताएंगे, और यदि उन्होंने मेरी बात मानी तो तुम्हारी भी मानेंगे। Please remember, sufferings and persecutions are the portion only those who love the Lord, those who follow the Lord, those who obey the Lord. और प्रियो इस बात को अच्छे से आप याद रखें कि सताव जो है और जो भी मसीह जीवन में जो तकलीफें आती है वो उसी के लिए आती है जो मसीह में बुलाए गए हैं और जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। There are two reasons. Number one, we have fallen nature within us and we are living in a fallen world. और ये सताव का कारण क्या है? क्योंकि हम गिरे हुए संसार में गिरे हुए स्वभाव को लेकर जीते हैं। Bible clearly talks about the world. The world means not people of the world, the system of the world. और परमेश्वर जब संसार शब्द का उपयोग करते हैं बाइबल में, तो वो लोगों का इसमें अर्थ लोग नहीं है, परंतु यह जो संसार की व्यवस्था है उसकी वो बात करते हैं। The Bible means, the world means there are many meanings. क्योंकि संसार शब्द हम जब कहते हैं तो उसके बहुत सारे अर्थ होते हैं। One is world means created world. और एक जो संसार है वो संसार है जिसकी रचना परमेश्वर ने की। And world means people of this world. और दूसरा संसार कहेंगे तो संसार के लोग हैं। And thirdly, world means system of this world. और तीसरा अगर संसार कहेंगे तो संसार की व्यवस्था है। When Bible says God created the world, that means he created all the creation in this world. और परमेश्वर जब संसार की रचना किया है बोलते हैं, तब परमेश्वर जो है वो संसार को जो रचना किया उसका मतलब ये सृष्टि है जो उसको उसने रचा है। God so loved the world, that means God loved the people of this world. और परमेश्वर जब संसार से प्रेम करता है कहता है तो वो लोग हैं जिनसे वो प्रेम करता है। And Romans chapter 12, verse 2, the word of God very clearly says that follow not the patterns of this world, then only you will know the will of God, perfect will of God. और रोमियो की किताब 12 अध्याय के 2 में जैसे परमेश्वर सिखाते हैं कि तुम इस संसार के सदृश ना बनो, तो यहाँ पे वो लोगों के बारे में कहते हैं जो जिनके समान तुम ना बनो। Then there the world means world has already defined its standards diametrically against God, against the principles of God, against the commands of God, against the word of God, the Bible. और दूसरी बात, जब एक परमेश्वर संसार की बात करते हैं तो यहाँ पर एक वो एक मानक को प्रस्तुत करते हैं कि संसार वो है जो परमेश्वर के सिद्धांत, आज्ञा और वचन के विरोध में हमेशा काम करता है। So when Bible says follow not the patterns of this world, follow not the systems of this world, follow not the rudiments of this world, follow not the traditions of this world,
definitely the people of the world will be angry with you because you don't dance according to their music. और जब परमेश्वर कहते हैं कि संसार के रीति रिवाज, इस संसार की इस गलत व्यवस्था और इस संसार की इन विधियों पर तुम ना चलो, तो संसार के लोग हमसे क्रोधित हो जाते हैं क्योंकि हम उनके अनुसार नहीं चलते हैं। And James chapter 4 and verse 4 says, do not have friendship with this world. इसलिए परमेश्वर ने याकूब 4 के 4 में कहा कि तुम इस संसार से मित्रता मत करना। Does not mean to say that don't make friendship with the people in this world. No. इसका मतलब यहाँ पे ये नहीं कह रहा है परमेश्वर कि तुम लोगों से मित्रता नहीं करना, ऐसा नहीं हो रहा है। That means you should not, you cannot have friendship with the system of this world. You cannot have that kind of friendship. और इसका मतलब है कि परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम इस संसार की व्यवस्था से मित्रता नहीं, संसार के लोगों की जैसी व्यवस्था पे मत चलना। So in the 1 John chapter 2, Apostle John says, love not the world. और जैसे कि पहला यूहन्ना 2 अध्याय में परमेश्वर कहते हैं कि तुम संसार को प्रेम मत करना। You cannot love the system of this world, but you have to love the people of this world. इस संसार की व्यवस्था से आपको प्रेम नहीं करना है, परंतु इस संसार के लोगों से आपको प्रेम करना है। James chapter 1, James says at the last verses, he says that do not be polluted, contaminated by the world, by the system of this world. विच वर्स अंकल? James chapter 1, you want to read it? Yeah, it is, yeah, 127, I think so, because it takes more time. For that reason, I'm not taking you, I want you to, note it down and then work on it later, because we can't keep on, referring all this ओके text. ओके, It आई will गॉट take इट much अंकल। time. Yeah, chapter यस 1, verse 27. Pure and undefiled religion is, in the sight of our God the Father, is to visit orphans, widows in their distress, and to keep oneself unstained by the world. और यहाँ याकूब 1 के 27 में लिखा है, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि लें और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। Okay, if you are so interested, let me show you this also. James chapter 4, verse 4. You adulterous, do you not know that friendship with the world is hostility toward God? और यहाँ याकूब 4 के 4 में लिखा है, हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है, वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। And 1 John chapter 2, और पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय, there it clearly says, verse 15, do not love the world nor the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. पहला यूहन्ना 2 के 15 में लिखा है, तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। In the Gospels, it is written, what shall it profiteth a man if he can gain the whole world and lose his own soul? और परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य सारे जगत को पा जाए और अपने आत्मा के प्राण को खो दे तो उसे क्या लाभ होगा। We have seen many things concerning the perfect will of God, the permissive will of God, how and when God causes all things to work together for our good and to fulfill the purpose of God. और हमने देखा कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा है और उसकी अनुमति से प्राप्त इच्छा है कि वो कब और कैसे हमारे लिए काम करे, ताकि हमारे लिए सब कुछ बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न हो Now करे। you will understand why sufferings are happening to the people of God. अब आप समझे होंगे कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में क्यों कई प्रकार की तकलीफ और परिस्थितियां आती है। I have got many things to say in this context of sufferings and in the context of pain, in the context of the persecution. और सताव के विषय में, दर्द के विषय में, पीड़ा के विषय में बहुत सारी बातें हैं जो हम कह सकते हैं। I have to show you why persecution is happening to the people of God in chapter 8. और मैं आपको बता सकता हूँ 8वें अध्याय में जब आप पढ़ेंगे कि प्रभु के लोगों में के जीवन में क्यों इतना सताव और दुख आता है। There are many people who raise questions saying that when such things are happening, where is God? और बहुत सारे लोग एक सवाल को उठाते हैं कि जब ऐसा होते रहता है तो परमेश्वर कहाँ रहते हैं। Somewhere I have seen a picture,
with some notes. It's very interesting. और मैंने एक चित्र देखा जिसमें कुछ नोट्स या शब्द लोगों ने लिख के रखे थे। I did not remember who that author is, और मुझे याद नहीं कि किस लेखक ने उसे लिखा है, but something fantastic that explains a lot. परंतु बहुत सुंदर और कई बातें उसे समझ में आने लायक बातें उन्होंने लिखी है। Someone was asking this man of God, where is God when such and such things are happening? एक व्यक्ति परमेश्वर के लोगों से पूछता है कि जब ऐसा होते रहता है तो परमेश्वर कहाँ रहते हैं। Then immediately at that time, one man was passing by. He had a long hair. Normally, ladies will have long hair, gents won't. और उसी समय एक व्यक्ति वहां से लंबे बालों वाला एक व्यक्ति गुजरता है, जबकि हम साधारणतः देखते हैं कि केवल स्त्रियों के लंबे बाल होते हैं। Then this man of God was showing that man with long hair. Does it mean to say that there is no barber in the city? और वहाँ लंबे बाल वाले व्यक्ति गुजरता है तो वहां पे एक व्यक्ति पूछता है कि क्या इस शहर में कोई नाई नहीं है जो बाल काटे। That speaks volumes. ये बातें बहुत कुछ सिखाती है हमें। Chapter 8, the book of Acts. प्रेरितों के काम अध्याय 8। We know that in the chapter 7, Stephen, when he was sharing God's word, when he was sharing God's love, people stoned him to death. और हमने देखा था कि प्रेरितों के काम अध्याय 7 में कैसे स्तिफनुस ने परमेश्वर के सत्य वचन को सुसमाचार को कहा था तो लोगों ने उन्हें पत्थरवाह कर दिया था। The very apostle Paul, who is the author, at least major part of this New Testament. Earlier, his name was Saul. He was persecuting the church. Verse 3, Saul began ravaging the church, entering house after house, and a dragging of men and women. He would put them in prison. और ये जो प्रेरित पौलुस है जो पहले साउल कहलाता था, जब ये मसीह विरोधी था और परमेश्वर को नहीं जानता था, उसके लिए 8 अध्याय के 3 वचन में लिखा है, साउल कलीसिया को उजाड़ रहा था और घर घर घुस कर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट घसीट कर बंदीगृह में डालता था। Then people were not, gathering together for a time of fasting and prayer and pleading, God, Lord, you bring this situation in control. You shut those mouth of those people. You somehow see to it that I will not be persecuted. They never do, did that kind of exercise. और हमने देखा कि सताव के बाद में प्रेरित लोगों ने खड़ा होकर ऐसा भी एक साथ मिल के उपवास प्रार्थना नहीं किया कि परमेश्वर ऐसा क्यों हो रहा है, ये सब परिस्थितियों को तू हटा दे और इन लोगों के तू बदल दे, ऐसा करके उन्होंने प्रार्थना नहीं किया। Verse 4. और यहाँ 4 वचन में लिखा है, Therefore, those who had been scattered went about preaching the word. और यहाँ 4 वचन में लिखा है, जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए फिरे। That's how gospel went to Samaria. और इसी प्रकार जो है सुसमाचार सामरिया नगर में फैला। In fact, Jews and Samaritans, they will not have any fellowship together at all. जबकि यहूदी लोग और सामरी लोग आपस में व्यवहार नहीं करते थे। Jews look down Samaritans and they don't even touch them. They don't even walk in their streets. They bypass their city. They treat them of low profile or untouchable people. और यहूदी लोग जो हैं वो सामरियों को छूते भी नहीं थे, सामरियों के शहर से भी होके नहीं गुजरते थे और उनसे कोई व्यवहार नहीं रखते थे, इवन उन्हें अछूत जानकर वो छूते भी नहीं थे। Because of the suffering, they had no option. They had to run through to helter and skelter, and then they entered Samaria. और यहाँ पे जो प्रेरित लोग थे उनको सताव हुआ और उन्हें छुपने के लिए कोई जगह नहीं मिला तो वे लोग सामरिया नगर में भी चले गए। Of course, the Lord led them and the Lord inspired them, the Lord guided them, no doubt about it. और हालांकि परमेश्वर ने उस क्षेत्र में जाने के लिए उनको अगुवाई भी किया और उन्हें मार्ग भी दिखाया। God causes gospel to go to Samaria because of the persecution. और हमने देखा कि परमेश्वर ने सुसमाचार को सामरिया नगर में पहुंचने के लिए रास्ता दिखाया, ये सब सताव के कारण हुआ। It is the purpose of God that gospel must go to Samaria. और ये परमेश्वर की योजना थी कि सामरिया क्षेत्र में सुसमाचार पहुंचे। Many people think that you people are very narrow minded people. Why do you think that God is required only for Jews? Why God has come only for Jews? That is nonsense. God loves every one of us.
Even in the Old Testament, we find Rahab and we find many, many people, even in the genealogy of the Lord Jesus Christ, who are not Jews, who are not Israelites. और हम देखते हैं कि कई लोग जो हैं जो संकीर्ण मनोवृत्ति के हैं वो कहते हैं कि तुम्हारा परमेश्वर केवल यहूदियों के लिए आया है, केवल तुम्हारे लिए आया है, ऐसा है। लेकिन ऐसा नहीं है प्रियो, परमेश्वर सारे संसार के सभी लोगों से बराबर प्रेम करते हैं। वो सभी लोग को प्रेम करते हैं। हम पुराने नियम में भी देखते हैं परमेश्वर ने राहाब जैसे लोगों को इस्तेमाल किया, और परमेश्वर की वंशावली में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो यहूदी नहीं। Let me repeat once again. God causes all things work together for our good and to fulfill the purposes of God, even the situations, even the situations which are against us, which will hurt us, and which will persecute us, which will cause us pain and suffering. और प्रिय बात याद रखिएगा कि परमेश्वर सारी बातों को मिलकर भलाई के लिए उत्पन्न करते हैं, क्योंकि उसकी योजना के अनुसार जब हम चलते हैं, इसलिए भले हमारे जीवन में दर्द है, तकलीफ है, कुछ भी आए, ये सारी बातें परमेश्वर की योजना से होती है कि उसके द्वारा हमारे जीवन में परमेश्वर के कार्य हों। These people love the Lord dearly और ये लोग जो है परमेश्वर को बहुत ही अधिक प्रेम करने वाले लोग। because they love the Lord, and God caused them to come to Samaria and preach the gospel. और ये लोग परमेश्वर से बहुत प्रेम करते थे, इसलिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया कि ये सामरिया क्षेत्र में आकर सुसमाचार सुनाए। And chapter 8, verse 14, please. और प्रेरितों के काम 8 अध्याय 14 वचन। When the apostles in Jerusalem heard that Samaria had received the word of God, they sent them Peter and John, who came down and prayed for them that they might receive the Holy Spirit. और प्रेरितों के काम 8 का 14 और 15 में लिखा है, जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। उन्होंने जाकर उनके प्रार्थना की कि पवित्र आए। We need to love the Lord, हमें परमेश्वर को प्रेम करने की जरूरत है, whatever may be the situation. चाहे परिस्थिति कुछ भी हो। When we love the Lord, we will obey God. परमेश्वर की हम जो प्रेम करेंगे तो हम उसकी आज्ञा को मानेंगे। Sometimes good may happen, sometimes bad may happen. हो सकता है कभी अच्छा हो सकता है कभी कुछ बुरा भी हो। Sometimes we have joy of the Lord, sometimes we have pain and suffering. हो सकता है कभी हम आनंदित हो सकता है कभी हमें दुख और पीड़ा भी झेलना पड़े। Sometimes we may gain, sometimes we may lose. कई बार हो सकता है हमें लाभ हो और कई बार हो सकता है हमें हानि हो। Please remember, as long as there is no contradiction between the will of God and the law of the land, there is no problem. और एक बात याद रखिएगा प्रियो कि जब तक परमेश्वर की जो इच्छा है उस पे और संसार की जो इच्छा है उस पे जब तक कोई वहां पे विरोधाभास नहीं है, तब तक सब ठीक चलता है। When the will of God contradicts the will of the law of the land, whom do you obey is the matter. और जब परमेश्वर की इच्छा और ये भूमि के व्यवस्था की इच्छा अलग होती है, तब हमारे ऊपर एक सवाल आता है कि हम किसकी इच्छा पे चलेंगे। If you obey the law of the land, you are safe and sound, you have no persecution, you have no music, enjoy your life, but it is temporal, you lose the eternal reward. और अगर हम उस समय भूमि की व्यवस्था पे संसार के लोगों के हिसाब से चलेंगे, तो उस समय हमारे जीवन में कोई सताव नहीं आएगा। हम बड़े आनंद से जीते रहेंगे और इस प्रकार इस संसार में रहेंगे, परंतु एक दिन हम अंत के समय पे पहुंच जाएंगे और परमेश्वर के न्याय का सामना करना पड़ेगा, जो कि हमें अनंत दंड तक ले जा सकता है। But if you obey the will of God, because you do not obey the law of the land, you may be caused to go through a lot of pain, suffering, insults, loss, damage, but you'll have eternal glory. And many people will be saved, if not now, sometime later. और प्रियो, अगर आप परमेश्वर की इच्छा पर चलेंगे तो हो सकता है संसार की इच्छा पे ना चलने के कारण आपके जीवन में दर्द, तकलीफ, मुसीबत, सताव ये सब आएगा, परंतु याद रखिएगा कि परमेश्वर एक दिन आपको अनंत महिमा में ले जाकर अनंत जीवन देगा और बहुत सारे लोग आपके द्वारा बचाए जाएंगे, अभी नहीं तो कुछ समय के बाद जरूर। History very clearly, categorically shouts at the top of its voice that the evangelists, the missionaries who brought the gospel, they paid lot of price. And so we are now saved and now we rejoice in the Lord. और इतिहास जो है वो बड़ी आवाज के साथ, ऊंची आवाज के साथ
इन बहुत सारी घटनाओं की गवाही देता है कि सुसमाचार प्रचारकों के कारण, मिशनरियों के कारण, जिन्होंने बहुत दुख जो उठाया है, बहुत सारी सताव को उनके जीवन में देखा है, आज उन्हीं के सेवा के कारण, सुसमाचार के कारण आप और मैं और हम जैसे लोग बचाए गए। Your choice. ये आपकी इच्छा है, आपका विकल्प है। Do you want the perfect will of God to be to be accomplished? You need to obey God. You need to cooperate with God. You need to say that, Lord, not my will, let thy will be done, come what may. और अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर की सिद्ध इच्छा आपके जीवन में पूरी हो, तो आपको अनुमति देना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा, आपको परमेश्वर का सहयोग करना पड़ेगा कि परमेश्वर आपके जीवन में सिद्ध इच्छा पूरी। In the book of Acts, chapter 8, we have seen the disciples committed themselves to the Lord, saying that we will obey the Lord, doesn't matter what happens to us. It's our business to glorify God. Then they were scattered. They were scattered, but they went to the Samaria, a place where they don't normally they do not go. They preached the gospel, and they were also born again. They were greatly blessed. There was a kingdom of God was established there. और प्रेरितों के काम देखते हैं कि प्रेरितों ने परमेश्वर की इच्छा के अनुसार बिखर गए, लेकिन वहां उन्होंने दुख जरूर उठाया, लेकिन सुसमाचार को लेकर सामरिया क्षेत्र में गए, और उनका एक बड़ा परिणाम निकला कि सामरिया के क्षेत्र के लोगों ने भी सुसमाचार को ग्रहण किया और परमेश्वर के वचन को मान लिया। Much more to say, but I'll stop here because of the lack of time. बहुत कुछ कहने का है, लेकिन समय की कमी के कारण मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ। Shall we close our eyes? आइए अपनी आंखों को बंद करें, Shall we examine ourselves? हम अपने आप की जांच करें। How do we answer the Lord? हम परमेश्वर को कैसा उत्तर देंगे? Will we obey the Lord? Will we love the Lord? Or love the world? क्या हम परमेश्वर को प्रेम करेंगे, वचनों को, या फिर हम संसार को प्रेम करेंगे? You decide. आप चुन लीजिए। May the Lord bless this word and speak to us. परमेश्वर इन वचनों से हमें बात करिए और हमें आशीष दे। Let's pray. आइए दुआ करें।